Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say you never fail until you stop trying. It was stated by Albert Einstein. तो चलिए फिर आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Inflation accelerates to 7.41%, highest since April. It is available on page number 1 और ये related है paper 3 economy section से. In this article, we have to know about inflation. How is inflation measured? What are the wholesale price index एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन रेट्स. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक आप जानते हैं कहां मिलेगा. अभी न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि रिसेंटली इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड टू 7.41% इन सितंबर compared with 7% in the previous month. And one more thing, September has registered the 5-month high level amid surge in food prices, right? Our next important headline is Tamil Nadu notifies India's first slender loris century. It is available on page number 5 और ये related है paper 3 environment section से. In this article we have to know about slender loris and Kadaur slender loris century. तो दोस्तों रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड कदाउर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी. अगर हम स्लेंडर लॉरिस की बात करें, दे आर स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स एंड दे आर arboreal in nature as they spend most of their life on trees and they act as a biological predator of pests in agricultural crops and benefits farmers. IUCN स्टेटस की बात करें तो दे आर लिस्टेड एज endangered species, right? Our next important headline is The Court and the Problem with its Collegium. दोस्तों ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. In this article we have to know about Collegium of the Supreme Court of India, how it works, criticisms and what lies ahead. तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है. लिंक आप जानते हैं कहाँ मिलेगा. उसके अलावा आप यहाँ भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, ठीक. Our next important headline is विंटर इज कमिंग. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8 और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से और पेपर 3 इकोनॉमी से भी इसको लिंक किया जा सकता है. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. तो दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे कल ही कवर किया गया था और आप जानते हैं लिंक कहाँ मिलेगा, राइट. Our next important headline is We need a forest-led COP27. It is available on page number 9 और ये related है paper 3 environment section से. In this article we have to know about the various ways of tackling climate crisis. What are the technological solutions discussed at COP26? Issues and key analysis and way forward. तो दोस्तों सारे पॉइंट्स को यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा. अगर हम ओवरव्यू देखें तो देयर हैव बीन कॉल्स फॉर डेवलपिंग एंड ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइड एंड इट हैज बीन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल दैट टेक्नोलॉजी एट बेस्ट कैन असिस्ट अस नॉट लीड अस ऑन द पाथवेज टू सस्टेनेबल रीजनरेटिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, राइट. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक. Our next important headline is Unfilled vacancies, stagnant workforce delay, RTI replies. ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे दोस्तों और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. In this article we have to know about Right to Information Act, features, objectives of the act, relevance, issues and data of recent reports and what lies ahead. तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और हमारी वेबसाइट पे भी आरटीआई को कई बार कवर किया जा चुका है, राइट. अगर हम ओवरव्यू देखें कि न्यूज में क्यों है दोस्तों, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशंस फिल्ड एज वेल एज पेंडिंग एप्लीकेशंस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, राइट. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज China's Wolf Warrior Era. It is available on page number 10. ये related है paper 2 international relations से. In this article we have to know about China's diplomacy in the past decade, relationship with India and future prospects. तो बहुत अच्छे से दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एक बार देख लीजिएगा आप, राइट. और हमारी वेबसाइट पे भी इंडिया चाइना रिलेशंस कवर्ड है, ठीक. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द ग्रैंडियर ऑफ चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया. ये अवेलेबल पेज नंबर 11 पे दोस्तों और ये रिलेटेड है पेपर 1 हिस्ट्री सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट चोला एम्पायर एंड रीसेंट आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड इंटरप्रिटेशंस. दोस्तों चोला एम्पायर को रिसेंटली हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया था, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज नो मोर इंडक्टमेंट अंडर सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट. ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स recent observations in this context. दोस्तों recently Supreme Court ordered states and their police forces to stop prosecuting free speech on social media under section 66A of the Information Technology Act, which was declared unconstitutional by the court in judgment 7 years ago, right. Our next important headline is
कोऑपरेटिव एक्ट अमेंडमेंट्स क्लियर्ड, ये अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे, और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022। तो दोस्तों रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2022 व्हिच सीक्स टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, राइट? And the bill incorporates the provisions of 97th constitutional amendment। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है amendments का? They aims to improve the governance, reform the electoral process, strengthen monitoring mechanisms and enhance transparency and accountability, right? Our next and last important headline is A Day to Explore Beer Necessities। ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे, और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे एंड स्लॉथ बियर। तो दोस्तों recently first world sloth beer day was observed to generate awareness and strengthen conservation efforts around the unique beer species endemic to Indian subcontinent। दोस्तों अगर हम स्लॉथ बियर को देखें तो it is classified as vulnerable on the IUCN red list and sloth beers are endemic to Indian subcontinent and 90% of the species population is found in India, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। Thanks for listening। For regular updates you can follow us on various social media platforms।